Hello everyone. This video is for class 11th. Before starting this video, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. In this video I'm going to cover chapter number 4, that is physical education and sports for differently abled person. In this video I'm going to cover adaptive physical education, aims and objectives of adaptive physical education, then three main bodies, those who are working for differently abled athletes. In that, the first body is Special Olympic Bharat or International Olympic Special Olympic body. Second thing is second body is Paralympics, and third one is Deaf Olympics. हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे इन तीनों ही बॉडीज़ की वर्किंग के बारे में, कभी एस्टेब्लिश हुआ और किन एथलीट्स के ऊपर वर्क करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट्स टू इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर. व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल. When we are talking about physical education, in very first chapter we have already learned about it कि physical education is education by which we can develop whole personality of a human being. When we are talking about whole personality, that includes physical fitness, mental fitness, or we can say mental sharpness, and then third was social fitness, means their behavior or their adjustment in the society. WHO has includes some other topics like economical or spiritual or emotional balanced also. Means when we are talking about spiritual or emotional balance, that depends upon our neuromuscular or psychophysical balance. Or when we are talking about economical development, it depends upon our neuromuscular or musculoskeletal फंक्शंस कि कितने एफिशिएंटली हमारे सारे फंक्शंस वर्क कर रहे हैं इस सोसाइटी में एग्जीक्यूट करने के लिए, या हम अपनी लिविंगहुड के लिए कितना एफिशिएंट हैं. देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन, देयर वर ओनली क्लासरूम स्टडीज इन द क्लासिकल पीरियड और इवन इन द मिडिल पीरियड ऑल्सो. आफ्टरवर्ड आर एजुकेशनिस्ट और सम फिजिकल एजुकेशन और सम स्पोर्ट्स पर्सन insist the implementation of physical education in normal education in the main academic education stream. After that, because the physical education was for physically fit people, because it was in our mind that only the fittest cloud of the society or the fittest people can play, can run, can participate in some physical or vigorous physical activities. But some other people are there in the society, those who are physically challenged, those who are having some mental problem, or we can say they have some mental retardation or visual impairment or deaf and dumb people. ऐसे लोगों को भी जब हम इनकी एजुकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली इनमें लैकिंग होता है जो हमारा फंडामेंटल डेवलपमेंट है, या जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. अब जब हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर बात आती है एक ऐसे एजुकेशन की जो बेसिकली स्पेशल लोगों के लिए, या जो डिफरेंटली हम लोग अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं डिसेबल. सी डिसेबल वर्ड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पीपल बिकॉज no doubt they are challenged, they have some problems, or they have some inactivation in their maybe limbs, or in their neuromuscular coordination, or in their brain functioning, but they are not disabled. Disabled means a person who cannot perform any work or who cannot even do anything. But these people are maybe somewhere somehow challenged
but in some different field they are especially talented, or they have very good qualities. So that is why these people are being called by differently abled people, not with the word of disable वर्ड जो बेसिकली चैलेंज्ड और जो ऐसी एजुकेशन है यहाँ से बेसिकली अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है. हम बात करते हैं बेसिकली व्हाट इज़ द एम ऑफ एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन. हाँ, एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन वर्ड बेसिकली जो मेन ब्रांच है एजुकेशन का, फिजिकल एजुकेशन का, वहाँ पर एक ऐसी ब्रांच जो बेसिकली ऐसे डिसेबल्ड और डिसऑर्डर्ड पीपल के लिए वर्क करती है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन ब्रांच. नाउ when we are talking about the aim and objectives of physical education, the aim of adaptive physical education is to develop basic locomotion or the basic gross development in the person. When we are talking about gross development is the fundamental movement of the human being. Means हम लोग जब बात करते हैं वॉकिंग की, सिटिंग की, जो हमारी बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, जिनको करने के लिए हमें कुछ अलग से एफर्ट नहीं डालना पड़ता है. दीज आर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. जहाँ पर हमारी बिग मसल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज़ आर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. तो ये जो एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन है, इसका बेसिक एम है ऐसे लोगों को जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो मेंटली चैलेंज्ड हैं, इनकी जो लाइफ में जो फिजिकल बेसिक लोकोमोशन है या जो उनकी जो फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं उसके लिए उनको कैपेबल करना, साथ में इनको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में वापस लाना, बिकॉज दे आर समवेयर समहाउ ignored in the society. The people, those who are living with them, even their own family members are thinking about that these people are a stigma in their family or in their society. So just for changing this feeling, or just for the change of their condition, adaptive physical education is needed for the society, and this is the primary aim of adaptive physical education. Now when we are talking about disability or differently abled people, a lot of categories are there, like those who are blind, or we can say visual impaired, or low vision, or sometimes hearing impairment, जिसको हम लोग डेफ ओलंपिक्स में कवर करते हैं, जिसको हम लोग डेफ म्यूट पीपल बोलते हैं, या फिर लोकोमोटर डिसेबल मीन्स those who cannot move properly, or they have problem in their limbs. Then mental illness or mental retarded people, ऐसे लोग जिनका IQ लेवल बेसिकली 74 या 70 से कम होता है. दीज आर द फिजिकली चैलेंज, दीज आर द डिसेबल और डिफरेंटली एबल्ड पीपल. देन हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन. ये जो स्पेशल एजुकेशन की हम बात करते हैं, स्पेशल फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, इनकी उद्देश्य क्या है, इनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज to take them in the mainstream of society, because these people are somewhere ignored, they are not getting a proper platform to perform their skills. That is why these bodies or these education policies are basically focused to provide them a proper platform. Second thing, to develop in their basic or fundamental locomotion. डेफिनेटली दीज आर चैलेंज पीपल. कहीं ना कहीं से बेसिकली व्हील चेयर पर या बेड पर, या बेसिकली इनके अंदर लोकोमोशन होता नहीं है, तो ऐसे लोगों को इनकी सर्वाइवल के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड लोकोमोशन है वो कहीं ना कहीं से ट्रेन करना, जो कि इजली स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ से पॉसिबल हो जाती हैं. देन बात करते हैं इम्प्रूव देयर इक्विलिब्रियम और देयर बैलेंस. ऐसे बहुत सी डिजीज़ हैं या डिसऑर्डर्ड हैं जिसमें जो एथलीट है उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन या उसका मस्कुलो स्केलेटल कोऑर्डिनेशन, या हम बहुत इजी वर्ड्स में बोले तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन या हाई हैंड लेग कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता है, वो उनका बैलेंस नहीं होता है इस पर. तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए गेम्स, स्पोर्ट्स और सम फिजिकल जो फिटनेस एक्टिविटीज़ हैं, सम माइक्रो एक्सरसाइजेस हैं या सम रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस हैं, इनके हेल्प से बेसिकली ये डेवलप करते हैं. देन बात करते हैं ऐसे लोगों को मोटिवेट करना या इनसे बात करके इनके इंटरेस्ट को जानना, फिर इनकी जो नीड है या इनकी जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग स्पेशल एक्टिविटीज़ प्लान करना और उसके लिए इनको मोटिवेट करना. देन ऐसे लोगों की काउंसलिंग करना जो फिजिकली चैलेंज है, जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, इनको
बेसिकली एजुकेट करना अबाउट देयर हेल्थ, हाइजीन, डाइट एंड देयर प्रॉपर मेडिकल चेकअप्स। देन बात करते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल the main principle of the adaptive physical education is to encourage them to get interacted with these people, those who are basically separated in the society, those who are basically ignored in the society। तो जो ऐसे स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं वो इनके पास जा कर के इनसे बात करना, इनकी काउंसलिंग करना और इनके बारे में ढेर सारी नॉलेज इकट्ठा करना और प्लस इनको इनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना कि no doubt they cannot walk properly but they can throw a shot put or discus or short ball or sometimes toy ball. This is their basically ability because somewhere somehow it is inbuilt in their mind कि they cannot do anything। तो बेसिकली हमारा जो पहला प्रिंसिपल है वो ऐसे लोगों को पहचान करना और उनको खुद से उनका इंट्रोडक्शन करवाना है। देन सेकेंड टॉपिक इज to activate programs accordingly these people, means these programs or the physical activities for differently abled people, it should be individualized। हम एक कॉमन प्रोग्राम के तहत इनके साथ बात नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डील विद देम विद अ कॉमन प्रोग्राम बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट चैलेंजेस इन देयर फिजिक और इन देयर बॉडी। सो हम जब बात करेंगे तो हम हर एक को उसको अपने ध्यान में, अपने जहन में रखते हुए प्लस उसकी डिफ़िकल्टीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके लिए प्रोग्राम्स को हम बनाएंगे। देन ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ फॉलो ऑल द सेफ्टी गैजेट्स और सब सेफ्टी इक्विपमेंट्स रूल्स दैट प्ले शुड बी हाइजीनिक और सेफ और एप्रोप्रिएट फॉर द प्लेइंग। बिफोर starting the physical activities, their routine medical checkup should be there। Without medical checkup, don't involve them in physical activities without the expert permission, do not involve them in the work, and during activity, even after activity also, their routine checkup should be there। Then बात करते हैं ऐसे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, फिजिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इन द गवर्निंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब हम बात करते हैं बेसिकली ऐसे लोगों की रूल्स और रेगुलेशंस की जो भी गेम्स में ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में इनको हम उन गेम्स में इन्वॉल्व करते हैं जहाँ पर इनके अकॉर्डिंग गेम्स को, उसके रूल्स को या उसकी जो वेब इक्विपमेंट्स हैं उनको हम लोग मॉडिफाइड कर देते हैं इनकी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। नाउ एक जो लास्ट प्रिंसिपल है, टू काउंसिल देम about and motivate them about their self-esteem, about their body image and about their social existence, so that they will get motivated to perform something or so that they will start taking interest in the physical activities। Now बात करते हैं कुछ ऐसी bodies की, those who are working for differently abled people। In that the first body is Special Olympics। जो स्पेशल ओलंपिक है दैट इज़ अ इंटरनेशनल कमेटी। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनिक कैनेडी शर्वर। शी वाज द सिस्टर ऑफ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर जॉन एफ कैनेडी। उन्होंने बेसिकली इसको अपने घर से स्टार्ट किया था। शी वाज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी। दो पीपल दोज हु आर फिजिकली चैलेंज्ड और दोज हु आर मेंटल रिटार्डेड, बेसिकली उनका जो एक इग्नोरेंस था वो मैम कैनेडी को या मैम यूनिक शर्वर कैनेडी को बहुत हर्ट करता था। इसके लिए उन्होंने ऐसे लोगों को ट्रेंड करने के लिए या बेसिकली उनके कुछ टाइम के लिए उनको काउंसिल करने के लिए इन्होंने एक बेसिकली अपना एनजीओ बनाया था स्पेशल ओलंपिक्स नाम से, जो इन्होंने अपने घर में बनाया था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ऑन 20 जुलाई 1968 इन यूएसए। आफ्टर दैट जब हम इंडियन बॉडी की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज स्पेशल ओलंपिक इंडिया। बाद में इसका नाम चेंज करके स्पेशल ओलंपिक भारत रखा गया, जो कि बेसिकली 2001 में एग्जिस्ट हुआ, 2000 स्पेशल ओलंपिक भारत। इसके पहले इन 1986 इट वाज स्पेशल ओलंपिक इंडिया। जब हम स्पेशल ओलंपिक्स की बात करते हैं, दिस इज़ अ नॉन
governmental non-profitable body which is working worldwide for mental retarded people. Again, I'm repeating this thing. Special Olympic is working only for mental retarded people. पर ऐसे लोग जिनकी IQ लेवल बिलो 70 है, जो जिसका मेंटल प्रेजेंस या जिसका मेंटल एफिशिएंसी अप्रोप्रिएट नहीं है टू सर्वाइवल इन द सोसाइटी. नाउ जब हम बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत की, आज के दिन में इसका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स है या इसका जो बिलीव है टू प्रोवाइड इक्वल प्लेटफॉर्म टू ऑल मेंटल रिटार्डेड पर्सन. इसकी जो बिलीव है कि दे आर स्पेशली, इसलिए इनको स्पेशल ओलंपिक्स बोला जाता है कि दे आर स्पेशली talented people. These athletes are specially talented. Maybe they have very less neuromuscular coordination, they have very less physical efficiency, but still they have a lot of talent. Even मैं कोर्स से हटकर मैं खुद की बात करता हूँ. I'm also associated with this body, and even we were shocked when first time I interacted with these people. This body have a lot of fine athletes जिनका जो अगर आप स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो दैट इज़ वेरी नियर बाई अदर नॉर्मल एथलीट्स, दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग और दोज हु आर परफॉर्मिंग एट इंटरनेशनल लेवल. सो वी कैन नॉट अंडरस्टिमेट देम. दीज आर स्पेशली टैलेंटेड पीपल. देन बात करते हैं ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स या फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे इनका जो फिजिकल एफिशिएंसी उसको मेंटेन करना, इनकी अपनी जो सोच है इनके लिए उसको चेंज करना, सेल्फ स्टीम बोलते हैं, इनके खुद के परसेप्शन अपने बारे में उसको इम्प्रूव करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना. प्लस आफ्टर परफॉर्मिंग व्हेन दे आर विनिंग समथिंग, व्हेन दे आर गेटिंग एनी मेडल, ऑटोमेटिकली इनका जो मेंटल लेवल है या इनका जो मोटिवेशन लेवल है वो इन्हांस्ड होता है, जिससे कि इनका एक अपना अगली एक्टिविटी के लिए या इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का एक प्रॉपर रीज़न मिलता है. दिस वाज द विज़न एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स. देन हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द मोटो ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स. स्पेशल ओलंपिक का मोटो बेसिकली है हमें एक स्पेशल ओलंपिक का जब मोटो की बात करते हैं बेसिकली इनका जो एक एम है हर किसी को या ऐसे एथलीट्स को जो सोसाइटी के किसी कॉर्नर्स में पड़े हुए हैं उनको लेकर के जो हमारा सोशल स्पेक्ट्रम है उसमें लेकर के आना है. ऐसे लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है. प्लस वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें इनको पार्टिसिपेट कराना है. देन बात करते हैं ओथ की. When we are talking about the oath of Special Olympics, the oath is let me win, but if I cannot win, let me brave in my attempts. It means it's a very clear-cut thing कि in this body, competition is not a matter. That is a secondary thing. The first thing is participation in sports, because जो basically इनका एक concept है, इनका एक mission है, वो है ऐसे लोगों को physically, mentally ज़्यादा उनके बारे में अवेयर करना, ज़्यादा इक्विप्ड करना या ज़्यादा बैलेंस करना. नाउ बात करते हैं इनके कॉम्पिटिशन्स के बारे में. स्पेशल ओलंपिक भारत डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के अभी बीच में ये मयास के साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है उसके साथ एसोसिएट होकर ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर या कह सकते हैं मंडल लेवल पर, उसके बाद में स्टेट लेवल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहा था. हर एक साल डिस्ट्रिक्ट गेम्स प्लस स्टेट गेम्स, उसके बाद में नेशनल गेम्स होते हैं. एथलीट्स का सिलेक्शन जनरल जैसे ओलंपिक बॉडी है उसी लेवल पर होता है. हमारे हर 2 साल के बाद विंटर और समर गेम्स होते हैं. स्पेशल ओलंपिक्स है मोर देन 36 गेम्स इन द बोथ कैटेगरीज, जिसमें अल्पाइन स्कीइंग और स्नो हॉकी से लेकर के बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, स्विमिंग, एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आर देयर. नाउ बात करते हैं व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत. जब हम अचीवमेंट्स की बात करते हैं 2002 तक जो हमारी अभी तक की जो मतलब रजिस्ट्रेशन था इस बॉडी में, दैट वाज मोर देन अप्रॉक्स 20 लाख एथलीट्स. अब हम जब बात करते हैं इनकी कॉम्पिटिशन्स की
already Special Olympic Bharat was participating in hockey, table tennis, a lot of championships, national, international level. Up to 2015 वर्ल्ड समर गेम्स और विंटर गेम्स हमारे पास जो टोटल मेडल्स थे दैट वाज 1062 मेडल्स फॉर इंडिया, एंड इन दैट 322 गोल्ड मेडल, 343 सिल्वर मेडल and 397 bronze medal. Means the normal Olympic committee or the Indian Olympic Association is nowhere in front of this body in the medals list. Now बात करते हैं हम लोग पैरालंपिक्स की. When we are talking about Paralympics, Paralympic body was basically established by Sir Ludwig Guttmann. He was basically a physical education personality or physical educator. This body is also working at the international level for physically disabled person, those who are basically having problem in their locomotion as well as visually impaired. Now this committee is also working on the same routine of normal Olympics. Summer games and winter games also they are organizing. In the first Paralympic games, that was called sports on wheelchair, was organized by Sir Ludwig Guttmann in 1948 for the soldiers of Second World War, those who were in a rehabilitation center. And he was a strong believer that by physical activities or by sports performance, they can enhance the self-esteem or they can enhance the living spirit in that those soldiers, those who were basically injured in the Second World War during British period. Now, in the medieval time, in 1960 or 2-3 games were organized in 1960. The word summer Paralympic games were organized in basically इस Olympic में more than 400 athletes were participated, and जिसमें टोटल 23 कंट्रीज़ के जो एथलीट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था. ऐसे इवेंट्स बेसिकली धीरे धीरे बढ़ते गए. 1980 में फुल फ्लैश जो एक प्रॉपर कमेटी होती है दैट वाज द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको फर्स्ट टाइम ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको गवर्न करने के लिए बनाया गया था. एंड लेटर ऑन इन 1982 इट बिकेम्स पैरालंपिक्स. बात करते हैं अगर इसके पैरालंपिक गेम्स की, इसके भी सारे जो बॉडीज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट और नेशनल लेवल पर सारे गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं. इंटरनेशनल गेम्स में एशिया पैसिफिक, वर्ल्ड पैरालंपिक गेम्स, वर्ल्ड समर पैरालंपिक गेम्स और वर्ल्ड विंटर पैरालंपिक्स गेम्स दोनों ही होते हैं. साथ में इसके और डिफरेंट पैरालंपिक चैम्पियनशिप होते हैं जिसमें एशियन गेम्स है. इसकी अगर हम स्पिरिट की बात करते हैं, इसको हम मोटो की बात करते हैं, तो स्पिरिट इन मोशन इज़ द मोटो ऑफ पैरालंपिक्स. मीन्स इनका जो मेन एम है वो ऐसे लोगों को मोशन में लाना या उनकी मोशन में या उनके मूवमेंट्स को ज़्यादा एंथुजियास्टिक करना. बेसिकली वो इनका एक कॉन्सेप्ट है या इनका एक विज़न है. नाउ हम लोग अभी रिसेंटली इंडिया की एक बहुत जो फेमस एथलीट हैं शी वॉज दीपा मलिक, अभी उनको हमने देखा है और उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है. तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ पैरालंपिक गेम्स. जब पैरालंपिक गेम्स की बात करते हैं, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी की, ओपनिंग सेरेमनी नॉर्मल ओलंपिक की तरह होता है और कई बार ये सेम स्टेडियम में ऑर्गेनाइज भी होता है. बस उस स्टेडियम में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एथलीट्स कई चेंजेस करने पड़ते हैं और समटाइम्स उसी सिटी में दूसरे स्टेडियम में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है. देन जब हम इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, ढेर सारे रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द एथलीट्स कंडीशन और उसके इक्विपमेंट्स भी चेंज किए जाते हैं. आफ्टर ऑल द इवेंट्स जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रही होती है, जो
कंट्री के फ्लैग बेरर्स होते हैं, जब फ्लैग लेके चलते हैं वो आगे पहले लीड करते हैं कंट्रीज़ को। पीछे होमोलोगनेसली या कह सकते हैं कि होमोजेनसली एक जो सारे एथलीट्स हैं वो एक साथ मिलकर के जिसको जंबल परेड बोलते हैं, वो वापस क्लोजिंग सेरेमनी में आते हैं। हर एक एथलीट को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस के लिए गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल मिलता है और नेक्स्ट 5 प्लेसेस के लिए उनको सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन प्लस रिबन दिया जाता है। देन अब हम लोग बात करते हैं डेफ ओलंपिक्स की। डेफ ओलंपिक इज़ ए कमिटी। बिफोर स्टार्टिंग डेफ ओलंपिक्स कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो पैरालंपिक्स की हैं, उसके बारे में बात करनी थी। बेसिकली इसकी जब हम बात करते हैं पैरालंपिक की, पैरालंपिक में कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो एथलीट्स अपने कैटेगरीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि अपर और लोअर लिम्ब चैलेंज पीपल और शॉर्टनिंग इन द लेंथ ऑफ द लिम्स लाइक बाय सम एक्सीडेंट्स और डिजीज़, जिसमें जो चाहे वो पैरों की साइज़ हो या हाथों की साइज़ हो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक पोलियो और सम अदर डिजीज़। इवन समटाइम्स इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनकी एक डिफरेंट कैटेगरी प्लस जो इक्विपमेंटल और वी कैन से जो अलग से बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं लाइक ब्लेड रनर्स और सम अदर व्हील चेयर रनर्स, तो इसके अकॉर्डिंग इनकी अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं। प्लस जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिनको बेसिकली हम साइन लैंग्वेज से इंस्ट्रक्शंस देते हैं। देन बात करते हैं हम डेफ ओलंपिक्स की। डेफ ओलंपिक इज़ डीलिंग विद म्यूट पीपल और डफ एंड डम पीपल। इसके भी सेम वर्ल्ड समर गेम और वर्ल्ड विंटर गेम हर 2 साल के बाद में होता है। इसकी भी एक इक्विवेलेंट इंटरनेशनल ओलंपिक बॉडी एक कमेटी है। इट वॉज फर्स्टली स्टार्टेड इन 1924 इन पेरिस। दैट टाइम इट वॉज वर्ल्ड म्यूट गेम्स और इन 2000 इसका नाम डेफ ओलंपिक फर्स्ट टाइम पड़ा हुआ था। और अप टू इट वॉज स्टार्टेड विद 9 कंट्रीज एंड 148 एथलीट्स, बट अप टू 2015 अभी तक इसके 27 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ दिस कमिटी। एंड इन लास्ट डेफ ओलंपिक्स इन द 2015 there were 336 athletes were participating in the tournament. Now अब हम बात करते हैं बेसिकली ये किस कैटेगरीज के लिए होता है, जो सुन नहीं सकते हैं और जो बोल नहीं सकते हैं। सुनने की जो बेसिक लिमिट है दैट इज़ 50 डेसिबल इन नॉर्मल हेयरिंग क्वालिटी। अगर वो इससे इस वेवलेंथ तक की वॉइस को नहीं सुन सकते हैं तो इट मीन्स दे आर इन द डेफ कैटेगरी। During participating in these tournaments, students or athletes cannot use any hearing aids. Coaches और जो और भी उनके trainers हैं, they cannot give them any sound image or in any other instructions during the competitions. Plus इनको बेसिकली वेल की या विशिल की या गन शॉट की जो साइन है वो नहीं दिया जाता है, बल्कि इनको फ्लैग ऑफ ऐसी चीज़ें बताई जाती है जो इनको आराम से दिखाई पड़े और वो उसको फॉलो कर सकें। प्लस इन तीनों ही जो गेम्स फेडरेशन से, चाहे वो स्पेशल ओलंपिक्स हो चाहे वो पैरालंपिक हो, मैं तीनों की कुछ नॉर्मल से बात करता हूँ। इन तीनों में ही जो कैटेगरीज होती हैं वो एज वाइज नहीं होती हैं, वो परफॉर्मेंस और एबिलिटी वाइज होती हैं। सेकेंड थिंग, इनके जो एथलीट्स हैं उनका पूरे साल एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है, मेडिकल रिकॉर्ड भी और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी। थर्ड थिंग, ये तीनों ही कमिटीज़ वाडा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसके सुपरविजन में काम करती है, उस गवर्नेंस में काम करती है। साथ में इन इंडिया दिस कमिटी इज़ वर्किंग अंडर द एजिस और अंडर द सुपरविजन ऑफ नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सो इट्स अ हाफ ऑफ द चैप्टर। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जो बाकी जो चैप्टर का पार्ट है दैट आई विल प्रोवाइड यू। Once again I'm saying please subscribe my channel so that you will get new videos, and I'm trying to cover the whole syllabus of class 11th and 12th. So right now you are in 11th class, next year you will get other videos for class 12th also. Thank you so much.